and welcome to my class. Today I am going to start with a new chapter, that is the first chapter of NCERT history book of class 10th. This is the rise of nationalism in Europe. Now throughout this chapter we'll be talking about nationalism emerging as a important ideology during the 19th century, and how this nationalism inspired the people across in Europe to form modern nation states, right? So to start with the chapter, your chapter starts with a painting given on first page of this chapter. Now let's talk about this. In the year 1848, Frederick Sayou, a renowned painter, a French painter who painted a series of four paintings. Right, he was a French painter जिसने चार पेंटिंग्स की एक सीरीज बनाई थी. Now he visualized the world made up of such nations where which are democratic and social republics. उसका एक विजुअलाइजेशन था कि एक समय ऐसा आएगा कि वर्ल्ड में ज़्यादातर जो देश होंगे वो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक पैटर्न पर होंगे. और इसी आइडिया को उसने डिपिक्ट किया अपनी पेंटिंग्स में. ही डिपिक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी ऑल्सो. हाउ? नाउ टू टॉक अबाउट दिस पेंटिंग विच इज़ गिवन इन द बुक, he has shown the people of Europe. We are talking about that time जब मॉडर्न नेशन स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे यूरोप में. तो ज़्यादातर एम्पायर्स होती थी और उनको रूल करने वाले डिस्पॉट्स होते थे जो कि एब्सोल्यूट डिस्पॉट्स थे. This is a term which is introduced in class 9th also when you have done French Revolution, but यहाँ पे मैं बता देती हूँ. Absolute despotism का मतलब होता है, historians have used this term absolute despotism to describe the reign of despots. डिस्पॉट्स वो राजा होते थे जो बिना किसी की मर्जी, बिना किसी की राय लिए अपनी मन मर्जी से रूल करते थे. उनके जो शासन था वो इस तरह से होता था कि वो जो भी कुछ कह देते थे वही लॉ बन जाता था. दिन को अगर रात बोल दिया तो जनता को मानना पड़ता था, राइट. और उनका ये रूलर्स अपने फ़ायदे के लिए रूल करते थे, जनता के लिए नहीं. तो ऐसे रूलर्स को डिस्पॉट कहा गया, जो कि यूरोप में उस समय मैक्सिमम राजा ऐसे ही थे और उनके एम्पायर्स या किंगडम्स थे. और उनके रूल को हिस्टोरियंस ने एब्सोल्यूटिज्म टर्म दे दिया. मीन्स एब्सोल्यूट डिस्पॉटिज्म इज बेसिकली द रूल ऑफ डिस्पॉट्स इन यूरोप, राइट. सो ऐसे समय में 1848 आफ्टर द रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड एज you have already done this chapter, new ideas came from French Revolution, and these ideas inspired people across the world, especially the Europe. So people in different regions of Europe, in different empires of Europe, they got this idea कि अगर फ्रांस में जनता अपने डिस्पॉट से तंग आकर उसको हटा सकती है तो why not we? They started supporting the idea of liberty, equality, justice. So इन आइडियाज़ को डिपिक्ट किया गया इस आर्टिस्ट द्वारा, फेडरिक सेड्यू. और उन्होंने इस पेंटिंग में दिखाया कि डिफरेंट नेशनल्स, यूरोप के अलग अलग एम्पायर्स के अलग अलग लोग जो हैं वो अपना नेशनल फ्लैग्स लेकर मार्च कर रहे हैं टुवर्ड्स द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. And the symbol of despotic rules are lying on the floor. जब अलग अलग देशों के अलग अलग एम्पायर के लोग अपनी झंडे लेकर मार्च कर रहे हैं, एक लंबी क्यू फॉर्म कर रखी है उन्होंने, दे आर मार्चिंग टूवर्ड्स द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू पे अ होमेज, उस तरफ जा रहे हैं. तो डिस्पोटिक रूल के जो सिंबल हैं, जैसे कि क्राउन, तख्त जो राजा को सिंबलाइज करता है, उनके अलग अलग एम्पायर्स के जो क्राउन हैं वो ज़मीन पर पड़े हैं. दिस shows that the people in Europe started favoring these ideas, these modern ideas. They no more wanted despots to rule their nations, to rule their empires.
right? And when they are doing this, they are paying the homage to the Statue of Liberty. Statue of Liberty symbolizing that they are heading towards new ideas. They want a change in the political setup, right? So when they are doing this, they on top Jesus Christ and the जिसे कहते हैं ना फरिश्ते, they are showering their blessings on people. Means even the God is showing support to people doing this, right? So this is the idea painted by Frederick Cheriot in his painting, promoting the idea of liberty, democratic and social republic. That now the Europe was in facing such a time where the people wanted their despots not to rule their empires and kingdoms. Rather, they want to have their own governments where they can equally participate in running the government. Now, 19th century saw the emergence of idea of nationalism. Now, talking about throughout this chapter, we'll be talking about nationalism. ये वो समय था जब 19th सेंचुरी में यूरोप जो है नेशनलिज्म जो आइडिया था उसे कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर इस आइडिया को अडॉप्ट कर रहा था, और इसी आइडिया के थ्रू नेशन मॉडर्न नेशन स्टेट्स की शुरुआत हुई, या मॉडर्न जो देश हम देख रहे हैं बने हुए उनको बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, राइट? सो टॉकिंग अबाउट नेशनलिज्म, नेशनलिज्म क्या है? एक टर्म है जो शो करता है विच इट इज़ एन फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू वन पर्टिकुलर नेशन, ऑफ शेयरिंग अ कॉमन आइडेंटिटी, राइट? तो एक होता है कि हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन सेक्रीफाइस एनीथिंग, इवन आवर लाइफ्स ऑल्सो. दिस इंटेंस फीलिंग इज पेट्रियोटिज्म, ये देशभक्ति है. लेकिन नेशनलिज्म एक अलग फीलिंग है कि हम इस देश के हैं, दिस नेशन बिलोंग्स टू अस, ये हमारा देश है, एंड हम सब में एक कॉमन चीज़ है, दैट इज़ वी शेयर अ कॉमन आइडेंटिटी. हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी है, हम किसी भी स्टेट के हों लेकिन हम इस देश को बिलोंग करते हैं, राइट? तो दिस फीलिंग इज नेशनलिज्म. इस आइडिया के साथ नेशन स्टेट्स इमर्ज हुए यूरोप में. अब राजाओं को हटाकर किस तरह से यूरोप में जगह जगह रेवोल्यूशंस हुए, और उन्होंने अपने डिस्पॉट्स को हटाकर मॉडर्न नेशंस को फॉर्म करने का जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट किया. We'll talk about this in this entire chapter, how the modern nation states formed. राइट नाउ अर्नेस्ट रेनन एक रिनाउंड फिलोसोफर थे जिन्होंने एक लेक्चर दिया था व्हाट इज अ नेशन, राइट? और लेटर ऑन दिस लेक्चर वाज प्रिंटेड इन वेरियस जनरल्स. सो उसमें उन्होंने नेशन की एक मॉडर्न डेफिनेशन दे दी. पहले सोचते थे कि लोग एक ही सेम रेस के, सेम कल्चर के हों और सेम भाषा बोल रहे हों, उनका रिलीजन प्रोबेबली सेम हो, तो ऐसे जगह में रहने वाले लोगों को वो एक नेशन बनाते हैं. लेकिन ही चेंज द डेफिनेशन ऑफ द नेशन. कैसे? ही सेड कि नेशन सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों से नहीं बनता है, बल्कि नेशन में रहने वाले जो लोग हैं उनका एक कॉमन पास्ट होता है, ठीक है? उनके जो पास्ट के इंडिवर्स है, उनके जो काम है, उनके जो सेक्रीफाइस है, उनका जो डिवोशन है वो सेम होता है. सिर्फ सेम रेस, कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन होने से नेशन नहीं बनता है, बट people living in a particular territory sharing same past, same endeavor, same sacrifice and devotion. ये सारी चीज़ें जब उन्होंने एक साथ मिलकर शेयर की होती हैं तो ऐसे टेरिटरी को हम नेशन बोल सकते हैं, राइट? एंड ही एम्फसाइज्ड ऑन द आइडिया ऑफ प्लेबिसाइट. प्लेबिसाइट का मतलब होता है कि नेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ जनता जो है गवर्नमेंट के हर एक काम में, या हर एक गवर्नमेंट को फॉर्म करने से लेकर गवर्नमेंट को रन करने तक जनता की राय ली जाए. तो प्लेबिसाइट इज टेकिंग एन ओपिनियन ऑफ पब्लिक, टेकिंग देयर वोट इन ईच मैटर हाउ टू रन द नेशन, राइट?
So this idea was given by Ernest Renan कि एक प्रॉपर नेशन कैसा होना चाहिए. नेशन में जनता का रूल होना चाहिए, जनता अपनी सरकार बनाए, सोवरन नेशन होना चाहिए जहाँ पे लीडर जो भी चुना जाए, जनता का हेड, वो अपने डिसीजंस खुद ले सके और जनता के अकॉर्डिंग रूल कर सके. सो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय अर्नेस्ट रेनन. नाउ दिस इज द दिस all these things gives you an idea about nationalism. And further in this chapter we'll be talking about how the modern nation states formed in Europe. जैसे हम यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे, हम इटली जर्मनी की बात करेंगे, ये नेशंस जैसे आज हमें दिखते हैं विद मॉडर्न बाउंड्रीज, वो पहले ऐसे नहीं थे, वहाँ पे एम्पायर्स थी. सो विल टॉक अबाउट हाउ द मॉडर्न नेशंस formed throughout this chapter. So please keep watching my videos. Please like, share and review this. Thank you.